ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ 2013124180 ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ preetnamausa@gmail.com। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਨਾਮਾ ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੂਮੈਨਸ ਡੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮੈਨਸ ਡੇ ਸੀਗਾ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਲੇਟ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਤੇ ਵਿਅਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ at least we come together. So ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਉਸ ਕੁੱਖ ਨੂੰ, ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਧੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰਤ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਆਨ ਹੈ, ਬਾਨ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਚਨ ਕਰਤਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨੇ, ਔਰਤ ਵੀ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਔਰਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਸਹਿਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਮਮਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਸਥਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਨੌਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ 'ਚ ਬੰਦ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੌਬ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਔਰਤ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਹਰ ਜੌਬ, ਹਰ ਸੈਕਟਰ, IT ਲਾਈਨ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ, ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਹੈ, ਬਿਊਟੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਹੈ, ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਹੈ, ਸ਼ੋ ਜਗਤ ਹੈ, ਹਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਨੇ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਟ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਨਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੀਤਨਾਮਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨ ਡੇ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਫੇਮਸ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਨੇ ਉਪਾਸਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਸਟ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਬਾ ਡੱਬਾ ਜੱਬਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ੋ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਿੰਦੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਮਰਾਠੀ, ਹਰਿਆਣਵੀ, ਭੋਜਪੁਰੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਹਰੇਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਨੇ ਉਪਾਸਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਿਨਾ ਰਹਿਮਾਨ ਜੀ। ਹਿਨਾ ਰਹਿਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਹੁਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸ਼ੋਅ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਸੈਕੰਡ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। So true 100% so true। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਿੱਟ ਰਿਹਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਲਡਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਹਿਨਾ ਰਹਿਮਾਨ ਜੀ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੰਚ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੂ ਮਚ। ਰੀਮਾ ਜੀ ਮਾਡਲ ਵੀ ਨੇ, ਐਕਟਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਸੋ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਟੈਲੈਂਟਡ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ, tall, handsome girl here with us today and so thank you so much ਰੀਮਾ ਜੀ। ਐਂਡ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਸ਼ੈਰੀ ਜੀ।
ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀ ਵੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਅਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਿੰਗਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਊਟੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਕਿਨ ਤੇ ਹੇਅਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲੂਨ ਹੈਗਾ ਫਰੈਸ਼ ਮੈਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਲਾਕਾਰੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਲਾਂਚਿੰਗ ਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਲੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾਨ ਸੀਗੇ ਪਿੰਕੀ ਜੱਗੀ ਜੀ। ਪਿੰਕੀ ਜੱਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਫਾਊਂਡਰ ਆਫ LILC, ਤੇ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਵਕਤ, ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀ। ਇੱਕ ਵੂਮਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ, ਸੋ ਮੇਬੀ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਾਸਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਪਾਸਨਾ ਜੀ ਦੀ ਐਜ਼ ਏ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫਸਟ ਫਿਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਮੂਵੀ 11 ਦੀਆਂ ਪੋਹ 12 ਜਿਹੜੀ ਹੈ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਮੂਵੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਲਰ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਪਾਸਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਉਪਾਸਨਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ ਥਰਡ ਟਾਈਮ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬੀ। ਔਰ ਐਨੇ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹੈਲੋ ਹਾਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਪਲੀਜ਼। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਮਸਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੀਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰੋਮੇਨੀਆ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਾਇਰਡ ਵੀ ਹੈ। ਤੋ ਪਰ ਪ੍ਰੀਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ 11 ਦੀਆਂ ਪੌਂ 12 ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਫਰਸਟ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀਰੀਅਲਸ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਐਜ਼ ਏ ਐਕਟਰ, ਪਰ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਦਮ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਆਡੀਅנס ਤੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਮੇਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ 1.5 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਮਿਲੀਅਨਸ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਵਿਊਜ਼। ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਹਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ, ਔਰ ਮਾਂ ਲਈ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਸ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਿਓ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। So sweet, so sweet. ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਪਾਸਨਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਫਿਲਮ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਕਿਊਟਨੈਸ, ਉਹਦੀ ਆਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਫॉर ਹਿਸ ਫਿਊਚਰ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ हिना जी। ओके जी, सबसे पहले तो औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सत श्री अकाल जी आप सबको। जो कहा जाता है सलाम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग,
जिस तरीके से भी आप एज ए ह्यूमन अपने अनदर पर्सन और जो भी हमें देख रहे हैं, इंटरनेशनल प्रीत आपका माशाल्लाह, अल्लाह मियां आपको तरक्की दे रहा है। और लोग, हकीकत है जो कि मैं इतनी ज्यादा हैप्पी हूँ, मैं तो इनको, मैं यही कहती हूँ हमारी अब्बा डब्बा जब्बा, क्योंकि मैंने आपको बिफोर दैट मैंने आपको बताया कि मैं अपना इंट्रो क्या दूंगी, मुझे जरूरत, मैं नहीं महसूस करती प्रीत कि हमें अपने बारे में कुछ बताना चाहिए। मैं बिलीव करती हूँ कि लोग हमारे बारे में बताएं। तो जहां इन्होंने इतनी प्यारी बात की पेरेंट्स की, तो मैं सिर्फ यही कहूंगी कि नो वन कैन लव यू लाइक योर मदर, नो वन कैन लव यू लाइक मदर, एंड नो वन कैन प्रोटेक्ट यू लाइक योर फादर, एंड दैट इज वालिदैन, दैट इज पेरेंट्स, दैट इज फाउंडेशन। और बिल्कुल उन्होंने अपने बेटे के लिए बात की, मुझे ऐसा लगा कि वो मैं अपने बेटे के लिए बात कर रही हूँ। और हर माँ ये कहेगी कि वो जब माँ बन जाती है तो उसका जो, उनकी जो इंट्रो इतना खूबसूरत उन्होंने दिया कि उन्होंने जिंदगी में इतनी मेहनत की, मगर आज अपने बच्चे के लिए जो मेहनत कर रही हैं वो उनकी जिंदगी का सबसे ज्यादा निचोड़ है। माय गुड विशेस, मेरी बहुत दुआएं, बहुत प्रेयर, आपकी फिल्म इंशाल्लाह मेगा सक्सेसफुल साबित होगी। यू आर सच अ गुड पर्सन, नॉट ओनली लुकिंग, बाय लुकिंग आप ब्यूटीफुल इनसाइड हो, आप ब्यूटीफुल आउटसाइड हो। और प्रीत वुमेन के लिए सिर्फ इतना कहूंगी कि इतनी प्यारी वुमेन्स आपने जमा की हैं और बहुत खूबसूरत वुमेन्स हमें देख रही हैं। हमारा आपका प्रोग्राम ना सिर्फ पाकिस्तान में, ना सिर्फ न्यूयॉर्क में, मैं आपको नहीं बता सकती कि मुझे कहाँ कहाँ से कॉलें आती हैं और वो आपका रेफरेंस प्रीत मुझे देते हैं कि आपका प्रोग्राम हमने देखा। और हकीकत है कि वालिदैन का सेकंड मीटअप आपकी वजह से मेगा सक्सेसफुल हुआ था। आपने मेरे साथ जिस तरीके से हार्ड वर्क किया था, और इंशाल्लाह आप इसी तरह मेरा साथ दीजिएगा। वुमेन के लिए मैं सिर्फ ये कहूंगी, कहीं पढ़ा था और बहुत खूबसूरत वर्ड्स थे, W wonderful wife, O outstanding friend, M marvelous daughter, A adorable sister, and N is very important, nurturing mother. That is woman, that's a woman. इन तमाम वर्ड्स के साथ वुमेन बनी है। जब तक आप एक खूबसूरत बीवी, एक खूबसूरत दोस्त, एक खूबसूरत बेटी, एक खूबसूरत बहन जब आप होती हैं, तभी आप एक खूबसूरत माँ बनती हैं और फिर आप एक मुकम्मल औरत बनती हैं, जिसे वुमेन कहा जाता है। हैप्पी वुमेन डे टू एवरीवन। और क्योंकि हर मजहब की खूबसूरती है, तो मैं अपने मजहब की खूबसूरती के लिए, अपनी तमाम मुसलमान बहनों के लिए, या एज ए वुमेन मैं ये कहूंगी कि बी अ स्ट्रॉन्ग लाइक, बी अ स्मार्ट लाइक खदीजा अलैहिस्सलाम, be a strong like a Fatima al-Islam, and be a brave like a Zainab al-Islam, क्योंकि इस्लाम वो वाहिद मजहब है जिसने सबसे ज्यादा औरत को इजाजत दी, और औरत का वजूद इस्लाम की वजह से है। तो एज ए मुस्लिम, एज ए प्राउड मुस्लिम वुमेन, थैंक यू सो मच, आपने हमें मौका दिया। थैंक यू सो मच प्रीत, हमेशा मौका देती हैं। और अब आप सब अनदर जो पैनलिस्ट है उनका हम इंट्रो देखेंगे। हिना, आप अगर हिना, हाँ जी हिना, मैं अभी आपसे बाद में बात करती हूँ, वो फाउंडेशन के बारे में भी बता देना। एक्चुअली अभी जो हम लोग हैं, पहले पिंकी जी को ले लेते हैं एज ए, वो एज ए हमारे सीनियर हमें लेना भी चाहिए। उनका कुछ फोन की प्रॉब्लम हो गई है, इस वजह से वो नहीं हो पा रहे हैं कनेक्ट, तो मैं आपको ले रही हूँ साथ में, ठीक है। हाँ पिंकी जी, मैं अभी आपको लेने लगी हूँ, आप बोलना, ठीक है। हाँ जी, पिंकी जी के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया कि LILC लॉन्ग आइलैंड की ये फाउंडर हैं, और कम्युनिटी के लिए जो ये जॉब कर रही है, इट्स नॉट इजी, शी इज डूइंग वेरी ग्रेट जॉब फॉर आवर ऑल कम्युनिटीज, नॉट जस्ट फॉर पंजाबी इंडियन कम्युनिटी, शी इज डूइंग फॉर एवरीवन, शी डूइंग, एंड शी इज सपोर्टिंग टू न्यूयॉर्क पॉलिटिक्स टू,
एंड शी इज डूइंग वेरी वेरी ग्रेट जॉब। सो ये अवार्ड, किसी भी अवार्ड, मैं कहती हूँ कि ऐसी महिलाओं के लिए अवार्ड तो एक छोटा सा टुकड़ा होता है हमारे लिए, जो उनका जो सम्मान है उसकी कोई मिसाल नहीं दे सकते हम, और हमारे पास कोई तारीफ की बात भी नहीं है। सो पिंकी जी जो है वो हमारे साथ बाय वीडियो नहीं आ पाई क्योंकि उनकी कुछ प्रॉब्लम हो गई है, कोई इशू आ गया टेक्निकली, तो आज हमारे साथ वो फोन पे हैं। तो हाँ जी पिंकी जी, आप, उपासना जी हैं, रीमा जी हैं, हमारे साथ हिना जी हैं, शैरी दत्ता जी हैं। तो उपासना जी की नई मूवी भी आ रही है, आपने उनको बधाई भी देनी है, उनके बेटे की न्यू मूवी, और उनकी एज ए डायरेक्टर प्रोड्यूसर, और ये फर्स्ट मूवी है। फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार एंड सत श्री अकाल सारे जो इस प्रोग्राम में प्रीत जी ने जहां दूर दूर से पाकिस्तान, इंडिया, सब लोगों को जोड़ा हुआ है, सबको मेरा सत श्री अकाल, आदाब। और मैं आज, मेरी किस्मत में शायद उपासना जी को देखना नहीं लिखा हुआ क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई मेरे फोन में, तो मैं नहीं आ सकी, बट मैं फोन पे आपसे बात कर रही हूँ। प्रीत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार करती हूँ कि आप मुझे लेके आई हैं, और मैं सिर्फ यही बताना चाहती हूँ, इन्होंने मेरी बहुत तारीफ में बोल दिया हुआ है। नाम पिंकी जग्गी है और LILC मीन लॉन्ग आइलैंड लेडीज सर्कल की मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। इसको हमने चलाए हुए 5 साल हो गए हैं, और ये नहीं, मैं सभी वुमेन्स के साथ ही हूँ, और ये इंटरनेशनल प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं हम लोग। हमारे साथ एक पूरी वुमेन्स की टीम है जो टीम वर्क की मेरे साथ चलता है, तो उसी से करते हैं। तो आज प्रीत जी तो हमेशा अपने न्यूज़पेपरों में हम लोगों को मीडिया के थ्रू आगे बढ़ा रही हैं। तो और उपासना जी, आपको तो मैं एक कांग्रेचुलेशन, मुबारक देती हूँ जो आपकी नई मूवी आ रही है, और मैं आपको बहुत समय से जानती हूँ। आज बाय फेस मैं आपसे नहीं मिल सकी, लेकिन पंजाबी मूवीज में, बॉलीवुड मूवीज में, कपिल शो में, सभी जगह मैं आपको मिलती हूँ। आई लव यू पंजाबी। अब मैं आपसे पंजाबी में भी बात करती हूँ कि पंजाबी के अंदर जब आप आती हैं तो एक शान लगती है हमें कि हमारे कैसे कैसे अदाकार पंजाबी में भी हैं और बॉलीवुड में भी हैं। तो वुमेन्स के लिए मैं ये कहती हूँ कि वुमेन्स एक जननी है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे हम मना रहे हैं, एक जननी है। वुमेन ही है जो एक मर्द को जन्म देती है और उसकी लाइफ सेट करती है। वुमेन एक माँ भी है, एक खूबसूरत बीवी भी है, और आगे जाके वो बच्चों की भी माँ बनती है, दादी भी बनती है, नानी भी बनती है। राइट नाउ मैं एक नानी भी हूँ, दादी भी हूँ, और अच्छी वाइफ भी हूँ, अच्छी मदर भी हूँ, अच्छी कम्युनिटी वर्कर भी हूँ, काफी कम्युनिटी का काम कर रही हूँ। पिंकी जी मैं इंटरप्ट करती हूँ। उपासना जी, मैं सबको बता दूं, ये जो बोल रही है ना, मैं दादी हूँ और नानी हूँ, अगर आप इनको इनकी बहुओं के साथ देखोगे तो इनको आप बोलोगे कि इनकी बहनें हैं छोटी। होए होए होए। तो फिर वीडियो मत चाहिए, एज जस्ट ए नंबर। आप उसकी स्पिरिट देखिए। हमारे लिए तो एक आइडल है कि अपने आप को इतना जो फिट रखा हुआ है इन्होंने, नानी दादी बनके भी। मुझे नहीं लगता हम नानी दादी के रूप में ऐसे रह पाएंगे, लेकिन जो ये है अपनी बहुओं की बहन ही लगते हैं, छोटे ही लगते होंगे, बड़े नहीं लगते। सबने तो मुझे देख ही लिया है। तो मैं और सबके लिए, सबको बहुत बहुत इंटरनेशनल वुमेन्स डे का अवार्ड लेने के लिए आई हूँ, और सबको मुबारक देती हूँ। वुमेन है, हम वुमेन बहुत स्ट्रांग है। यहाँ की वुमेन क्या, आजकल तो इंडिया की वुमेन भी बहुत स्ट्रांग हो गई है। बस मैं इतना ही कहती हूँ, करते जाओ। वुमेन्स इस हर डिपार्टमेंट में पहुंच चुकी है। शो करो, वो 50 साल या 40 साल वाली वुमेन्स नहीं है। हम यहाँ पर या इंडिया के अंदर जो नई आई है जनरेशन, वो वुमेन्स हर डिपार्टमेंट में है। गुड लक फॉर, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि आई एम ए वुमेन, आई एम वर्किंग फॉर वुमेन। तो इतना बस मैं कहना चाहती हूँ। और उपासना जी, आपसे मैं 2 वर्ड अपने लिए सुनना चाहती हूँ। सत श्री अकाल पिंकी जी। जब इन्होंने बोला कि पिंकी जी से बात करो, तो मुझे लगता है पिंकी सिर्फ मेरा ही नाम है, क्योंकि मेरे को पिंकी बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने कपिल शर्मा में मैंने काफी साल पिंकी सुना अपने आप को, पिंकी बुआ।
तो मुझे लगा ये प्रीत मेरे को मेरे यहाँ वाला पर मोगी वाली है। पिंकी भी कहते हैं। So, जो साडे पंजाबी भरा ने भैनां ने, वो मैनू मोगी वाली पिंकी कहंदे ने। अच्छा, ओके। हाँ, ते ਤੇ ਮੈਂ पिंकी ਤੇ वर्ड ਤੁਹਾਡੀ ज्यादा मेरा ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਦੇਖਦੀ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ, ਉਹ ਵਰਡ ਮੇਰੀ ਕਾਨੋਂ ਮੇ ਹੁਣ ਵੀ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀਆਂ 'ਚ ਟਿਪੀਕਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ 22 साल की हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं हॉट हूँ, मैं sexy हूँ। मैं क्या नहीं, मैं कहूंगी आई एम 22-year-old hot, sexy and glamorous girl। ਅੱਛਾ, ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਪਿਰਿਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਟੈਲੈਂਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਪਿਲ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਟੈਲੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਟੈਲੈਂਟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਐਕਟਿੰਗ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਮਿਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਲੈਂਟਡ ਹੋ, ਇੱਕ ਹੀ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪਾਸਨਾ ਜੀ, ਕੱਲ ਭਾਗਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰਸੋਂ ਸੀ ਕੱਲ ਪਿੰਕੀ ਜੀ, ਤੇ ਭਾਗਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਭਾਗਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ। 24 तारीख को शिल्पा शेट्टी के साथ हूँ। मैं जो चारों प्रीत जी, एक तो आपको मुबारक देती हूँ, और जो चारों हैं, शहरी दत्ता इज माय गुड फ्रेंड, और हिना जी, और दूसरे मैं उनको जानती नहीं हूँ। रीमा जी जो है पिंकी जी, वो कैलिफोर्निया से हैं, ये मॉडल है, एक्टर है एंड मेडिकल लाइन से रिलेटेड है, और बहुत ब्यूटीफुल भी है। किसी पर्पज हमारी कोई न्यू मूवी आ रही है, तो उस मूवी की अभी सीक्रेट है, अभी सस्पेंस है, इसलिए हमने फोटोज शेयर नहीं की हैं। अच्छा जी। अच्छा, तो हाँ, फोटो वो शेयर नहीं की है, अदरवाइज मैं आपको अपनी फोटो भी इनके साथ, रितुपर्णा जी और ये सब लोग, हम इकट्ठे हुए थे तो मुझे फोटो हमने खींची थी, पर नहीं हम शेयर की, क्योंकि वो प्राइवेसी है अभी थोड़ी। कोई बात नहीं, पर एक ऐसा उपासना, जब भी आप अमेरिका में आए, प्रीत जी से मिले तो प्लीज मुझे भी मिलिए, और हम आपसे बैठेंगे, इकट्ठे बैठ के असी मक्की दी रोटी और साग खावांगे। Oh, so lovely, so lovely. Right, प्रीत? बिल्कुल 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 पिंकी जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਕਾਲ ਤੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ ਰੱਖਣਾ। Thank you very much. ये गुड लक फॉर एवरीवन। आई नो ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ, ਔਰ ਗੁੱਡ ਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਫਿਊਚਰ ਦੀ। ਕੋਈ ਮੂਵੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੋ ਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ ਰੱਖਣਾ, ਹੋਲਡ ਰੱਖ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਣਾ ਤੇ ਕਾਲ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾ ਦਾਂਗੀ। कॉल मी बैक। ओके, गुड। नो, मैं वीडियो वॉच कर रही हूँ। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो हाँ जी, थैंक यू पिंकी जी। सो जो अपने दर्शक देख रहे हैं उन्होंने सारे अंदर भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आरती जी, इकबाल जी, आशा जी, अगे काफी नाम जेडे मेरे को मिस हो गए, सारे का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम हो सके तो शेयर जरूर करना, ते हर बार की तरह ये प्रोग्राम भी दोबारा परसों रिपीट टेलीकास्ट होएगा, प्रीमियर दा चैनल दे ऊपर, सो वेखना ना भुलना। ते अगे आपां लैंदे आ जी, पहला रीमा जी नूं लईए। हाँ जी रीमा जी, पहला तुसीं अपने बारे दसो, इन सारे दर्शकों नूं वोमेन डे भी है, ते उपासना जी नूं भी मुबारक जरूर दिओ, बेस्ट विश दिओ। इन्हां दा भी मूवी आ रही है, फिर आपां इन्हां दा ट्रेलर भी शेयर करांगे। डेफिनेटली। मुझे पंजाबी इतनी आती नहीं है, अभी मेरा फर्स्ट स्टिंट आपके साथ अभी इस शो पे पंजाबी में हुआ, सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि अभी मेरी फर्स्ट ये इस शो में पंजाबी से स्टार्ट हुई है, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। आई ऑलवेज लव टू लर्न न्यू लैंग्वेजेस। और मेरे बारे में अगर मैं बताऊं तो आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट। मैं एक डायरेक्टर हूँ और सीनियर्स के साथ काम करती हूँ इन अ ह्यूज कम्युनिटी इन कैलिफोर्निया। और वहाँ पे उनको जो सीनियर्स है, आई हेल्प देम रिहेबिलिटेट फिजिकली। और इसके अलावा मैं एक मॉडल भी हूँ। मैंने काफ़ी शोज किए हैं। अभी न्यूयॉर्क फैशन वीक, जस्ट आई वॉक द रनवे फॉर न्यूयॉर्क फैशन वीक। अभी LA फैशन वीक जा रही हूँ नेक्स्ट वीक, और उसके बाद काफ़ी और मॉडलिंग असाइनमेंट्स है। फिर मूवीज भी रिलीज हो रही है थोड़ी, और एक म्यूजिक वीडियो भी कर रही हूँ। और एंड
most importantly, Upasana ji, it is a pleasure and an honor कि आपके साथ इस शो में मैं कनेक्ट हो पाई, और यू नो आपको कल मैंने उस फ्लायर पे देखा जो पिंकी जी ने ये भेजा था, and I was just stunned. I was like, oh my God, what an opportunity and what an honor to be sharing space with someone like you who I've been watching, you know, growing up screen pay. So thank you so much for being here amongst us and giving us that encouragement and wishes or aapki blessings, and wish you all the best and your son for a successful directorial debut. और प्रीत जी, आपके बारे में तो मैं क्या बोलूं, we just met like last month, it's probably not even been a month, and we just connected. एक picture हमने साथ में ली and we just connected, so that just shows how warm you are and what a personality you are. So it reflects in your shows, it reflects in how you host. नहीं, बिल्कुल नहीं, because I will not say that unless I mean it. So my patients के साथ भी यही करती हूँ, I always tell, वो हमेशा बोलते हैं नहीं आप ऐसे ही बोल रहे हो. I said no, you are doing well, I am going to say it because it comes straight from the heart. So उपासना जी नेक्स्ट मूवी के लिए साइन कर लीजिए. उपासना जी, मैंने कहा नेक्स्ट मूवी के लिए साइन कर लीजिए. आ रही हूँ, मुझे लगता है हम लोग अमेरिका में, मैं एक फिल्म वैसे भी जून या जुलाई में आ रही हूँ एक फिल्म करने, जो कि इंग्लिश और पंजाबी में बनेगी. हम लोग वहीं शूट कर रहे हैं, तो अगर मौका मिला और आप लोगों के पास टाइम हुआ तो डेफिनेटली आप आइएगा, और मैं चाहती हूँ हम सब इकट्ठे काम करें. आप लोग इतने कमाल के लोग हो. हमारी भी गुड लक होगी, हमारी भी गुड लक होगी. जी मैं जून और जुलाई के लिए उन्होंने मुझसे डेट्स ली हैं. अमेरिका में शूट होगा वो. आप अमेरिका जब भी आएंगे, आप प्लीज हम सबको इतना मौका दीजिएगा कि हम पर्सनली आपसे मिल सकें. दैट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, बिकॉज आपसे पर्सनली मिलने का मुझे बहुत ज्यादा शौक है, बहुत ज्यादा. नानक को साथ में लेके आइए. जब आप लोगों ने, मैं आमिर खान की पहली मूवी देखी होगी, क़यामत से क़यामत तक, राइट? सब बहुत छोटी थी मासूमियत थी ना, उससे भी ज्यादा डबल मासूमियत लेके आए हैं नानक. तो मैं उसका ट्रेलर शेयर करने से पहले, हमारे जो न्यूयॉर्क से बाकी लोग हैं, अनिल दुआ जी हैं हमारे साथ, सब जानते ही हैं उनको, मोहन धालीवाल जी और बाकी आशा दुआ जी, भजन मंडली जो कि भजन गाते हैं, उपासना, ये सब लोग हमारे साथ प्रोग्राम में नहीं है लेकिन देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, और सभी जो है आपको ये शुभकामनाएं भी दे रहे हैं. ਤੁਹਾਡੀ नवी फिल्म ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ब्लेसिंग दे रहे हैं. सो सारे ਦਾ बहुत बहुत शुक्रिया. अनिल जी, आशा जी, विजय जी, मोहन जी, सारे ਦਾ बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद. ਤੇ शैरी जी, 1 सेकंड लगेगा, एक ट्रेलर ਆਪਾਂ शेयर कर लिए. ओके, बिल्कुल. शहरी तो बहुत खामोश हो गए. शहरी को इसलिए कि शहरी को पता है ढेरों सारी बातें करनी है. मैं सुन लूं, कभी सुनने का मौका भी देना चाहिए. हाँ, वो बोलते हैं, हम सुनते हैं ना उनको. पहले तो हम नानक का सॉन्ग शेयर करते हैं. बहुत प्यारा लगा मुझे ये सॉन्ग. यस, प्लीज प्लीज. Wow. So this is a really lovely. प्रीत, मैं तो वैसे भी मैट्रिमोनियल से रिलेटेड हो, तो आई रियली लाइक इट. आपका तो फील्ड है.
ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਗਾਣਾ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਜੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। हिना मैं जी अपने अपने ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ। ਗਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ बजाना ट्रेलर समेत। जी, मैं तो फिर अपने Okay. जो है ना मैं नहीं स्लोगन आ में लगा पाऊंगी दूंगी। सॉरी, लेकिन आप ये गाना जरूर बजाना उसमें, ट्रेलर पूरा। इनका एक सेकंड इवेंट होने जा रहा है न्यू जर्सी फिजिकली, तो वो बहुत जी बड़ा यार। इवेंट है, उसके बारे में हम बाद में बात करते बता देंगे। लेकिन हिना जी रिमाइंड करवा रही हूँ दोबारा फिर से, ये बजाना है आपने ट्रेलर पूरा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी शहरी जी। वैसे भी न्यू जर्सी में आपको पता है बहुत ज्यादा इंडियन जो है ना, वहां पर बहुत इंडियन मार्केट एंड जो कहते हैं ना चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। आई थिंक आप सबको पता है न्यू जर्सी तो बहुत, ओक स्ट्रीट तो आई थिंक इज काइंड ऑफ अ लिटिल इंडिया ओवर देयर। आरती जी शुक्रिया, थैंक यू सो मच। उपासना जी आरती जी की तरफ से LIC की ऑफिसर है, ये भी पिंकी जग्गी की टीम की, और हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड है, और बहुत सारे काम ये भी कर रही है। ये बुटीक भी आई थिंक इनका फैशन डिजाइनिंग का भी कुछ काम है, और इनकी तरफ से भी आपको गुड लक है। हाँ जी शहरी जी, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੀਤਨਾਮਾ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਆਰ ਪਲੇਜ਼ਰ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਟ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਡੇ ਕਿ ਉਪਾਸਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਡ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਯੂ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਅਗੇਨ ਫॉर ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਦਿਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, कि ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਨੈਕਟ ਹੋਏ ਆ अपना अपना टाइम ਕੱਢ के, और स्पेशली टू सी उपासना जी, आर्टिस्ट का टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। एक मिनट के पैसे होते हैं आर्टिस्ट के। और ये इतनी बड़ी अदाकारा हमारे सामने इस समय बैठी है, सो बिल्कुल हम तो समझते हैं प्यार इतना है, पैसा कोई मायने नहीं रखता प्यार तो ज्यादा, और तुसी मैनू इतना प्यार करते हो सारे। So kind of you, but we truly understand, we value you and your time, so 100% right। yeah exactly। So कर रहे हो मेरे लिए ये बहुत बड़ी गल है। मैं of course ये जो एक शुरू से हम एक कहावत सुनते आते हैं, आई एम सॉरी थोड़ा सा नेगेटिव उसमें है, कि एक औरत को खींचती है, सपोर्ट नहीं करती, जलन होती है, फलाना होता है, ढिमकाना होता है, इसको निकाल दो। आज इंटरनेशनल विमेन डे पे इसको निकाल दो, एंड लेट्स लिफ्ट अप ईच अदर, लेट्स बी अ सपोर्ट फॉर ईच अदर। ये जो इतनी सी चीज को अगर हमने निकाल दिया ना अपने अंदर से, कि उसकी साड़ी मुझसे सफेद कैसे है, तो है ना, होने दो, तुम अपनी कलरफुल कर लो यार, क्या फर्क पड़ता है। सही बात है। विमेन्स डे पे उसका डिटर्जेंट जो है वो प्योर है। हाँ होने दो ना, क्या फर्क पड़ता है भाई, तुम अपने आप को और ज्यादा कलरफुल कर लो। That's a true thing, that's a मैं true thing। इसमें बिलीव करती हूँ कि हम दूसरे को देख के, सोच के, रादर देन कंपेयर करने के, हम अपनी अंदर की क्वालिटीज, जो कि चाहे हम हाउस वाइफ हैं, होम मेकर्स हैं, हम सिर्फ बच्चे पाल रही हैं, सिर्फ हस्बैंड देख रही हैं, सिर्फ घर पे भी हैं, तो भी हम स्पेशल हैं। हम स्पेशल हैं, हमारा हर दिन स्पेशल है, हर मोमेंट स्पेशल है। अच्छा, औरतों की जब बात होती है, सॉरी अनदर एक कैटेगरी है औरतों की, जिसमें हम बहन कहते हैं, माँ कहते हैं, बेटी कहते हैं, बट एक और कैटेगरी है औरत की, सिंगल मदर। जब वो अपनी लाइफ में सिंगल हो जाती है फॉर एनी रीजन, और उसके पास 1, 2, 4 बच्चों की जिम्मेवारी होती है, और वो बच्चे बढ़ जाते हैं, माँ और बाप के बीच में उनका मिलना, उनका टुगेदरनेस, उनकी परवरिश इकट्ठे होने में वो ऑब्स्टेकल्स आते हैं। मैं पर्सनली सल्यूट करती हूँ उन सारी सिंगल मदर्स को, जो सोशल, अपने आप को, सोशल इमेज को मेंटेन करने के लिए कितना कुछ फेस करती हैं, जो अपने बच्चों के साथ बीइंग सिंगल कितना कुछ फेस करती हैं, क्योंकि पार्टनर का सपोर्ट नहीं है, और ऑन द कॉन्ट्ररी जब वो अपने आप को सेटल करने के लिए दोबारा एक रिलेशनशिप पे होती हैं, तो वो कितना कुछ फेस करती हैं। So 100%। hats off to all the single mothers on especially this International Women's Day, क्योंकि हम बात ही नहीं करते इस बारे में। हम जब औरत की बात करते हैं तो हम उसको एक कंप्लीट इमेज के रूप में देखते हैं कि ये तो फुल पैकेज है, माँ तो अच्छी होनी चाहिए, परफेक्ट बेटी होनी चाहिए,
परफेक्ट बीवी होनी चाहिए और शक्ल सूरत तो होनी ही होनी चाहिए. So all the women who don't have a fair skin, who don't have sharp features, who are not even popular, but they are beautifully managing their life and lifestyle and Right. social life and their relatives and their families, सबको सैल्यूट है. यू आर स्पेशल. आप खुद स्पेशल हो. और फ्रॉम दिस डे ऑनवर्ड्स, आज से हम ये कोशिश करें कि जितनी औरतें, जितनी हमें आगे बढ़ती हुई कामयाब औरतें, उनको सपोर्ट करें. तो उपासना जी, यू आर माई फेवरेट. ओ माई गॉड, मेरे आज भी किसी भी सैड मोमेंट में योर कॉमेडी, योर सीन्स ऐसे चलाती हूँ मैं, नॉट इन फ्रंट ऑफ यू. ये मेरी पूरी फैमिली को पता है कि कुछ भी हो, दैट सीन अब्बा डब्बा जब्बा प्रीत जी ने पहले ही बोला है. So we are going to promote your picture, your movie, your son, your efforts, your hard work. Not just being a Punjabi woman, not just being a कि हमारी इंडस्ट्री में हो, being a woman, we are going to support you. थैंक यू सो Excellent. मच. थैंक यू जी. Excellent. मैं आपको आपने जो ये बात की कि सारी औरतें इतनी खूबसूरत हैं, ये बहुत ही सही आपने कहा. मैं इंडस्ट्री में रहते हुए हम लोग इतने लोगों से मिलते हैं, तो मैं कितनी औरतों से मिलती हूँ अलग अलग प्रोफेशंस की, और कई लोग हाउसवाइफ्स हैं और वो इतनी खूबसूरत हैं दिल की, उन्होंने इतनी स्ट्रगल की है इतनी लाइफ में. तो मुझे लगता है उनको सैल्यूट करना चाहिए. एक एक औरत, एक एक कहानी है पूरी फिल्म की है, मतलब उनपे फिल्म बन सकती है. मेरी मदर की मैं बात करूंगी, मैं थोड़ा हटती हूँ. देखिए आप मेरे पीछे, मेरी मदर आपको दिखाई दे रही Wow. होगी. मेरी सिस्टर, मैं और मेरी सिस्टर है, तो हम लोगों की बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रही है हमेशा ही. और मैं आज जो भी हूँ अपनी माँ और अपनी बहन की वजह से हूँ. और अब जब मैं ये फिल्म बना रही हूँ, ये मैंने फिल्म बनाई है 11 दिया पौं 12, तो मेरी सिस्टर की बेटी है जिसका नाम है पर्ल, और वो रियल में पर्ल है. उसने मतलब मेरे को जरा भी स्ट्रेस नहीं लेने दिया किसी भी चीज का. वो सारी, जितना भी मैं बोलती हूँ 50 लड़के जो काम कर सकते हैं, वो अकेली पर्ल ने किया है. मतलब इतना Wow. ज्यादा उसने काम किया और आज तक कर रही है. उसको रिलीज करने के लिए बहुत काम होता है. सो मेरे लिए लेडीज की बहुत इंपॉर्टेंस रही है. मेरे, जब मैं फिल्म लाइन में आना चाहती थी तो सब हमारे घर के लोग खिलाफ हो गए, मतलब मेरे फादर और जो बाकी हमारे रिलेटिव्स थे. सिर्फ मेरी मदर खड़ी थी मेरे साथ. उन्होंने बोला कि मेरी जो बेटी चाहेगी, मुझे पूरा यकीन है कि ये कुछ गलत नहीं करेगी, और उसमें अगर टैलेंट है तो वो आपको आना चाहिए. तो मम्मी मेरे नर्सिंग में उसमें थे, लेडी हेल्थ विजिटर थे, उनकी थोड़ी सी तनख्वाह हुआ करती थी, और उसी में उन्होंने मुझे और मेरी बहन को पढ़ाया. मेरी बहन MA MPhil PhD है, उसने तीनों यूनिवर्सिटीज को टॉप किया. उसका नाम निरुपमा है. पंजाब, पंजाबी, हरियाणा, वो इंग्लिश लिटरेचर में उसने जब MA की थी. और मैंने भी एक छोटा सा जगह बनाई दुनिया में, तो उसका सबसे बड़ा श्रेय जो है वो मेरी मदर को जाता है. तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि कोई भी बच्चे, आपकी बेटियां, आपके बच्चे कुछ भी बनना चाहें तो उसका साथ दीजिए. और मेरी बहन ने भी मेरा, मतलब मम्मी के जाने के बाद जिस दिन मेरी मदर दुनिया से गई थी, मुझे डायरी में लिखा था कि मेरी लाइफ खत्म हो गई आज, क्योंकि वो मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड, मेरी सब कुछ थी वो, मतलब मेरी गाइड, में क्या कहूँ उनको. तो मेरी बहन एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह उस टाइम मेरे साथ खड़ी रही, और आज तक खड़ी है वो मेरे साथ. मेरा घर हो, मैं शूटिंग्स में जाती हूँ, पीछे से सब मैनेज करना, सब कुछ करना वो करती है, पर्ल करती है. सो लेडीज की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या मतलब हम लोग एक दूसरे के लिए करते हैं, वो कमाल है. मतलब और मैं सैल्यूट करती हूँ हर लेडी को. और ये जो इस टाइम आप स्क्रीन पे जिनको देख रहे हो, वो प्रोफेशन में भी सक्सेसफुल हैं, वो अपने घर में भी एक अच्छी माँ, एक अच्छी पत्नी, और अपना पूरी फैमिली को देखना, मतलब बहुत बड़ी जॉब होती है ये. सॉरी टू से, लेकिन आदमी ये नहीं कर सकते. बिल्कुल नहीं, it is not sorry word, it's a very true word कि आदमी ठीक है, और वो भी एक गाड़ी दो पहिए से ही चलती है, लेकिन जो एनर्जी, जो पावर, जो सहनशीलता एक औरत में है, वो मर्द उसके बराबरी नहीं कर सकता है. ये भगवान ने दोनों को जो चीजें दी है, सोच समझ के दी है, कुछ उसको दी है, कुछ उसको दी है, लेकिन सबसे बड़ा रोल एक वो माँ के रूप में औरत को दिया है. 9 महीने तक एक बच्चे को पेट में रखना,
उसका पेन सहना, फिर उसको जब औरत की डिलीवरी होती है उसका दूसरा जन्म होता है, बिल्कुल, ठीक है ना। 100%। फिर उसका अगला जन्म शुरू हो जाता है, एक माँ बन के उस बच्चे की परवरिश करना और उसको उसका मुकाम तक लेके जाना। मैंने कल अपनी एक वीडियो आप लोगों के साथ इस कविता मैंने जो की थी कि हाँ मैं औरत हूँ, बहुत तो खूबसूरत। मैंने सबके साथ शेयर भी की थी कि औरत क्या कुछ करती है, कितने रोल एक्टिंग में नहीं रियल लाइफ में कितने रोल होते हैं। और मैंने एक और कविता लिखी हुई है, अभी मैं शेयर नहीं करूंगी, बस उस बता रही हूँ कि ड्रामा, मुझे लगता है कि मैं एक ड्रामा कर रही हूँ, ड्रामा प्ले कर रही हूँ। कभी मैं बच्ची थी, बेटी थी, फिर मैं बहू बनी, फिर मैं बीवी बीवी बनी, माँ बनी, फिर एक ड्रामा सा लगता है कि हम लोग एक ड्रामा, जो रियल लाइफ भी हमारा वही एक करेक्टर है, हम जो अपनी Right. भूमिका निभा रहे हैं। राइट। तो वाकई में उपासना जी की बात ये बिल्कुल सही है। और ये प्रोग्राम का मेरा मकसद देखो ये नहीं था कि आप लोग सिर्फ इतनी सी वोमेन मेरे लिए, बाकी सारी सम्मान जोग्यता है, लेकिन इस प्रोग्राम के जरिए मैं अपनी उन बहनों और बच्चियों को ये प्रूव करना चाहती हूँ। मेरे साथ बीबी दरविंदर कौर खालसा जी को सभी जानते हैं ना, इंटरनेशनल वो है, फाउंडर है दिल्ली से, तो वो भी प्रोग्राम करते हैं। तो हम लोग एक ही बात शेयर करते हैं कि देखिए हमारी ये वोमेन्स, देखिए उपासना जी को, देखिए क्या सादापन है उनमें, शैरी जी देखिए, हिना जी देखिए, मैं अपने दर्शकों से बोल रही हूँ सबसे, रीमा जी को देखिए, पिंकी जी को देखिए, अब इनकी सादगी देखिए। मैं अपनी बहनों और उन बच्चियों को ये बताना चाहती हूँ कि नंगेजता से, छोटे कपड़ों से, जो जितने भी गलत काम आप थोड़े से फॉलोवर्स के लिए, लाइक बढ़ाने के लिए वो कर रही हैं, जो हमारी पूरी एक भारतीय कल्चर को बदनाम कर रहे हो आप लोग। राइट। माफ करना मुझे, अगर किसी को भी, मेरे दर्शकों में से किसी को भी बुरा लगे तो मुझे माफ करना। ये हमारे एक अच्छा काम होता है ना, तो पूरे देश का नाम रोशन होता है। जैसे मान लो कोई भारतीय हमारे यूएस में, इंग्लैंड में, कहाँ कहाँ कामयाब होते हैं तो हम पूरे भारत का नाम गिनते, राइट। अगर वही बच्चा, अगर वही कोई गलत काम करता है तो हम बोलते हैं हाँ इंडियन तो ऐसा कर रहे हैं, और इंडियन हमारी भारत बहनें जो है कर भी रही हैं, बच्चियां कर भी रही हैं। पूरी वो एक अश्लीलता की, आप टिकटॉक जैसे जो ऐप है हमारे एंटरटेनमेंट के लिए है, ना कि हमारी बॉडी एंटरटेनमेंट के लिए। एंजॉय करो, खुल के जियो, हंसो खेलो, लेकिन एक लिमिटेशन में। आप ये करेक्टर, मैं अपनी बच्चियों और बहनों से ये कहना चाहूंगी कि आपके सामने ये स्क्रीन पे जो 4 वुमेन्स बैठी हैं, इनका नाम कभी भी इस दुनिया से नहीं जाएगा, हमेशा लोग याद रखेंगे। नाम ऐसा बनाओ जो आपकी बैक के पीछे याद रखे लोग अच्छे काम से। आप कमेंट में भी देखिए कितने सारे लोग दुआएं दे रहे हैं ना, उपासना जी को दुआएं दे रहे हैं, बेटे को देखा नहीं है लेकिन दुआएं दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनको पता है उपासना जी का, बिल्कुल, हाँ ऐसी है तो बच्चा भी ऐसा होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा ना बनाए, ये ना बताएं कि हाँ सेक्सी बॉम, ये सारे आपको कमेंट आए, वो कोई भी, मैंने एक बार पहले भी कहा था कि वो लोग तो सेक्सी बॉम हॉट कहने वाले हैं ना, वो आपको स्क्रीन और आपके फेस पे कहते हैं, आपकी बैक पे नहीं। ना ही वो लोग आपको अपनी बीवी और बहन के रूप में कभी भी अपने घर की इज्जत बनाने के लिए राजी नहीं होंगे। वो आपके साथ रात गुजार सकते हैं, दिन गुजार सकते हैं आपके साथ, वो कमेंट में आपको बटरबाजी करके वो कर नहीं रहे, आप करवा रही हैं। क्योंकि मर्द और औरत जो है एक उनका जो एक भगवान ने बनाया है, एक दूसरे को अट्रैक्टिव करते, तो आप उनको अट्रैक्टिव कर रही है गलत तरीके से। तो वो आपको कमेंट कर सकते हैं लेकिन आपको अपने घर की इज्जत नहीं बना सकते। आपको बहन के रूप में कभी कोई भी लड़का ये नहीं चाहेगा कि उसके, वो आपको कमेंट कर रहा है हॉट का, उसे पूछे, आप बड़ी खुश हो कि उसको आगे से वीडियो के जरिए से जवाब देती है नंगी होके कि वो अपनी बहन को ये बोल सकता है। मैंने कल ही देखे हैं, मैंने इतनी गंदी गंदी वीडियो हमारी इंडियन वुमेन्स की खास तौर पे देखी है कि मैं स्क्रीन पे दिल करता है कि लोगों के सामने शेयर करूं कि मेरा प्रोग्राम इंटरनेशनल होता है, देखें आप लोग ये क्या गुल खिला रही हैं, हमारे पूरे भारत का नाम बदनाम करिए। तो मेरे ये प्रोग्राम का मकसद ये भी था, ये बताना कि नाम इस तरह का बनाएं जो इज्जत से ले, जो हमारी हर फैमिली, हर आदमी, हर ये कहे कि ये बच्चियां हमारे घर में पैदा हो। प्रीत जी बड़ी अच्छी बात की आपने। एक्चुअली ये सबसे बड़ा फर्क है
अगर हम बीइंग इंडियन, या तो हम अपने आप को भारतीय ना कहें, या हम ना अपने आप कहें। को अपने कल्चर से जुड़ा हुआ ना कहें। हम कहें Right. कि जी ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਫॉरेन कंट्री ਚ ਆ गए ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ रवांगे, ਸਾਨੂੰ कोई मतलब नहीं है। पर इस बात में मैं फिर उपासना जी आपका जिक्र करना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि आपकी मम्मी का, आपकी मदर का बहुत बड़ा रोल था आपकी लाइफ में, आज आपकी परवरिश में बहुत बड़ा रोल था। तो जितनी भी आज की जनरेशन है, मैं इंक्लूडिंग मी, आई वॉज अ सिंगल मॉम फॉर ईयर्स, ओके। और मेरी बेटी इस समय पता नहीं देखेगी तो मुझे कहेगी मम्मी मेरे बारे में बात नहीं करनी है आपने, ओके। तो आज मेरी बेटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ऑन स्कॉलरशिप, शी इज द टॉपर, वो पढ़ रही है, माशाल्लाह, एंड आई एम अ प्राउड मदर। मुझे माशाल्लाह, इससे मुझे लगता है ये मेरा ट्रेजर है, ये मेरा खजाना है। बेटा बहुत अच्छा पढ़ाई में अच्छा जा रहा है, ही इज अ गुड ह्यूमन बीइंग। सबसे वाह। पहले मेरे को ये था तुम एक अच्छे इंसान बन जाओ, कैटेगरीज बाद में हो जाएंगी। तो वो मुझे, मेरी मदर नहीं थी, मेरी मदर पास्ट अवे जब मैं 2 साल की थी, और मेरी दादी ने, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने मुझे बड़ा किया है। आज वाह, विमेंस डे पे माय मदर आशा कुमारी दत्त, मैं उनको शत शत नमन करती हूँ, थैंक यू। मेरी माँ जो मुझे इस दुनिया में लेके आई, और उनका ब्लड था मेरे अंदर कि आज अमेरिका में रह के भी अपने कल्चर के साथ मुझे ये बातें आती हैं करनी, मुझे किसी ने नहीं सिखाई, मेरे अंदर था ये सब कुछ कि मैं अपनी रूट्स के साथ जुड़ी हूँ। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई डॉटर। आज वो अपना दुनिया भर में, मेरे पूरे फैमिली में, मेरे पूरे खानदान में बहुत कम होंगे जो बहुत हाईली एजुकेटेड होंगे, बट शी इज द ओनली वन इन माय एंटायर फैमिली जो ऑक्सफोर्ड में अपने दम पे सक्सेसफुल हुई है, पढ़ रही है, दुनिया के टॉप बच्चों के साथ एजुकेशन ले रही है। तो मुझे लगता है ये हमारा कल्चर, हमारे रूट्स हैं, कि वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हुई, उसे नहीं राइट, लगा कि मुझे अमेरिका रह के एक्सपोज करके, या अपनी मतलब ये नो इस तरह से कुछ करके आगे बढ़ना है। हम अपनी एजुकेशन के साथ, अपनी संस्कृति के साथ, अपने कल्चर के साथ हम लोग यहाँ तक पहुंच सकते हैं, हम राइट, पहुंचे बिल्कुल। हैं, और आगे भी पहुंचते आपके रहेंगे। संस्कार हैं, आपके संस्कार हैं जो आपकी बेटी और बेटे में है। तो मैं बिल्कुल आपसे बिल्कुल एग्री करती हूँ, प्रीत जी से भी एग्री करती हूँ कि ये वल्गैरिटी से और इससे कुछ नहीं होगा। ये बहुत ही आपकी सोच, अगर आप ऐसा सोचते हो कि इससे आप कुछ बड़े बन जाओगे, तो ये छोटी सोच है। डेफिनेटली कुछ ऐसा करिए कि पूरी दुनिया आपको याद रखे, पूरी आपका दुनिया। इज्जत से नाम ले। तो राइट, ये बहुत जरूरी होता है कि पीठ पीछे अगर आपको कोई कुछ आपके लिए अच्छा बोल रहा है, चीप बोल रहा है, या वो आपके फेस पे तो बोल देंगे कि अरे वाह क्या ब्यूटीफुल लग रही हो इस ड्रेस में और तुम पे बहुत सूट करता है, और पीठ पीछे आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं, लड़कों के बीच में आप बातें कर रहे हैं कि अरे, मतलब मैं वो वर्ड्स नहीं यूज करना चाहती, लेकिन आप अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को मत भूलिए, अपने इंडिया को मत भूलिए। मत इसमें मैं फिर से अपने बच्चे की बात करना चाहूंगी कि नानक, आप जानते हैं आजकल बच्चे सब पार्टीज होती हैं, सब होता है, तो सब यहाँ तो बॉम्बे में भी बहुत ड्रग्स वगैरह और बहुत कुछ चल रहा है। तो जब नानक को मैं किसी पार्टी में लेके जाती हूँ, तो मैंने एक बार नानक को ऐसे ही कहा कि नानक सब लोग वाइन ले रहे हैं, तुम लेना चाहोगे? बोलता आप शायद भूल रहे हो कि मेरा नाम नानक है। Oh, सो sweet. they are Lovely. so sweet, Awesome. उसने कभी नॉन वेज को नहीं छुआ, और जबकि सब लोग बोलते हैं अरे तू हीरो बन रहा है, तुझे जिम में जाना चाहिए, तुझे इतने एग्स खाने हैं, तुम्हें बॉइल्ड चिकन खाना है, तुम्हें ये करना है, लेकिन उसने बोला कि मुझे जो भी करना होगा ना, मैं वेजिटेरियन रह के कर सकता हूँ, और अगर मेरे को नॉन वेज खा के और ये सब करके मुझे कुछ करना है तो मुझे नहीं करना है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। सो उसने कभी हाथ नहीं लगाया। सो मैं यही कहना चाहूंगी अपने सारे बच्चों को कि प्लीज अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को मत भूलिए, और माँ बाप को कहना चाहूंगी कि ऐसे संस्कार दीजिए अपने बच्चों को, उनको सिखाइए, उन्हें समझाइए, ताकि वो इंडिया का नाम रोशन करें। excellent, so बिल्कुल beautiful. बिल्कुल उपासना जी, सो ब्यूटीफुल एंड वेरी वेरी नानक के लिए मैं क्या कहूँ, आप जितना क्यूट है, इतनी अच्छी आप बातें भी बता रही है, और सारे नीचे
हमारे जो दर्शक है आपको दुआएं भी दे रहे हैं और आपको गुड लक भी बोल रहे हैं। तो मैं एक चाहूंगी कि मूवी का एक ट्रेलर और जो सबके साथ शेयर कर दूं, ताकि सबको पता चल जाए कि 30 तरीक को 11 दिया पो 12 30 मार्च ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਪਾਸਨਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ट्रेलर ਇੱਕ शेयर कर ਲਈਏ। जी जरूर जी जरूर। ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੀਜਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਵ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ ਤੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਆਵਾ ਹੀ ਉਤ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਠਰਕੀ ਮੰਡੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੈਲਾ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈ ਲਾ ਬੇਬੀ ਡਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿਆਰੀ ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਮਾਰੀ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਲਈ ਇੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਿਉਂ ਪਏ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਓ ਯਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਉ ਬਾਰਾਂ। ਤੂੰ ਕਦੇ ਹਾਕੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖਿਆ? ਉਹ ਚ ਖਿਡਾਰੀ 22 ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਲ ਇੱਕ, ਪਰ ਗੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਗੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਜੁਗਨੂ ਟਿਮਟਿਮਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਫੇਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਚ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਬੋਲਣਗੇ ਕੱਢਣੇ। ਪਟਾਕਾ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਬੰਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਚ ਵੱਜ ਕੇ ਫਟ ਜੀਏ। So good. नाइस, सो Too ब्यूटीफुल। good. It's too good. Lovely. पता होने लग रहा है कि कितनी मजेदार मूवी होने वाली है, फुल एंटरटेनमेंट काम है जी। एक और देखो, एक छोटा जा बहुत जबरदस्त ट्रेलर तो हाँ, भाई बहुत जबरदस्त है। अभी फिल्म बाकी है। थैंक यू अभी सो फिल्म मच। बाकी है, सही कह रहे हैं। ਮੈਨੂੰ ਅਭੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੁਣਾਈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਮੇਡੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਹੱਸਣਾ ਖੇਡਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਯੰਗਸਟਰਸ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਕਾਲਜਸ ਚ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਾਮੇਡੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਣ। ਔਰ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਵਲਗੈਰਿਟੀ ਕੋਈ ਚੀਪਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। नहीं बहुत थोड़ा ज्यादा जी स्टार कास्ट बारे भी दस दियो उपासना जी। ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਵਾਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਔਰ ਇੱਕ ਹਰਨਾਜ਼ ਕੌਰ ਸੰਧੂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਨੇ। ਫਿਰ ਭੱਲਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਜੀ, ਤੇ ਹਾਰਬੀ ਸੰਗਾ ਜੀ ਨੇ, ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ, ਗੋਪੀ ਪੱਲਾ, ਸ਼ਿਵੇਂਦਰ ਮਹਿਲ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਗਾਣੇ ਨੇ, ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ, ਨਛੱਤਰ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਰੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸ, ਕਮਲ ਖਾਨ, ਮੰਨਤ ਨੂਰ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੱਛੇ, ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ, ਸਭ ਵੱਡੇ ਸਿੰਗਰਸ ਦੇ ਗਾਣੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਂਟਰਟੇਨਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾ ਸਕੇ, ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਟੀਜ਼ਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਕਵਾਂ। नहीं जी, आपका बहुत ट्रेलर देखकर ही अंदाजा हो गया कि इज वेरी मेगा सक्सेसफुल। मैंने आपको पहले ही मैं ही कहा था कि मेरी दुआ है आपके लिए। अभी इतना हमने पूरी बातचीत की, पूरी बातचीत हमेशा प्रीत एक अपने टॉपिक में एक सेंसिटिव टॉपिक भी लेकर आती है और हमेशा बात करती है। देखें, बहुत से लोगों को आदत हो गई है यहाँ पर, वो कहते हैं सानू की। अगर किसी के बच्चे गलत राह पे जा रहे हैं, सानू की। अगर कहीं पे कोई बुराई देख रहे हैं या हम गलत बात किसी के लिए करते हैं, सानू की। तो इसलिए कि वो हमारे साथ नहीं हो रहा, बट दैट इज वेरी रॉन्ग वे टू जज एंड डू एंड लिव इन दिस लाइफ। आपको आज आप सानू की कह रहे हैं,
कल आप वो जगह पे आ सकते हैं, क्योंकि ये एक कर्मा है और ये जिंदगी अल्लाह ताला ने, रब ने आपको दी है कि आप एज ए गुड ह्यूमन बीइंग अच्छा काम करें किसी के बच्चे के लिए। अब प्रीत ने कोई बात ऐसी नहीं कही किसी टिकटॉकर को या किसी को भी उसने पॉइंट आउट नहीं किया, उसने बेसिकली एक गलत बात को आगे किया है कि यहाँ पर आप लोग इस चीज को प्रमोट नहीं करें। हम वो वीडियोस अगर देखना छोड़ दें, हम वहां पर उनको, उन टिकटॉकर को लाइव नहीं करें, आप क्या समझते सकते हैं कि वो आगे जाएंगे? हम नहीं, हम खुद देखते हैं। अगर हम हर प्रोन चीज को, हर गलत चीज को अपने घर से बंद कर दें, जैसे आपने अपने बेटे के लिए कहा, आई लव इट टू हियर दैट, कि उसने क्या बात कही। मैं आपको छोटी सी एक एप्पल बी की मैं आपको बताऊंगी कि हम डिनर कर रहे थे, हमारी फैमिली थी, और मैंने कहा ना कि मेरे बच्चे अपने अब्बा को अब्बा कहते हैं और मैं अब्बा डब्बा कहती हूँ, मैंने कभी अब्बा नहीं बोला, अब्बा डब्बा जब्बा मैंने आपसे बताया कि हम इसी तरह बात करते हैं, और ही लव इट, उनको बहुत पसंद है। और आपने ये जो कॉमेडी की बात की, बिल्कुल हमारी जिंदगी में हंसी कम है, हमें हंसने की बहुत जरूरत है। तो वहां पर डिनर के ऊपर मेरे हस्बैंड ने एक कॉकटेल ऑर्डर किया, तो मेरे दोनों बच्चे साथ थे, तो उन्होंने हम खा रहे थे, क्योंकि उसमें आप कोशर खा सकते हैं, वेजिटेरियन एंड फिश आप ले सकते हैं। इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट हलाल, यू डोंट नीड टू टच इट, यू नो, लाइक अ सेम थिंग। मेरी बेटी वेजिटेरियन है, मैं आपको बोल रही हूँ, वो शी इज नाउ स्टार्टिंग वीगन। वो कहती है कि अगर आप जॉन इब्राहिम को लें, हाउ मसल एंड ही इज अ वेजिटेरियन टू, जितना भी बड़ा आप देख ले वो वेजिटेरियन है, वो दे आर डोंट टेक एनी काइंड ऑफ मीट। तो ये क्योंकि आप जो खाते हैं वो आपकी बॉडी में जाता है, और एज ए मेडिकल हकीकत है, आपका ब्लड प्रेशर, आपका कोलेस्ट्रॉल, हर चीज आपकी डाइट के ऊपर है कि व्हाट यू कंज्यूमिंग, व्हाट यू टेकिंग, दैट इज यू आर शोइंग। तो थोड़ा सा लिमिटेड के वो बैठे हुए थे, तो वो कॉकटेल मेरे हस्बैंड ने बड़े प्यार से ले लिया, तो मेरे बेटे ने कार्ट में रीड किया तो उसके अंदर वाइन थी, तो मेरे बेटे ने कहा कि अब्बा दिस इज नॉट हलाल, तो मेरे हस्बैंड कह रहे नो वाइन इज हलाल, तो मेरे बच्चे दोनों कह रहे नो अब्बा, डोंट मेक द थिंग्स हलाल फॉर यू, इज नॉट हलाल। और वो उन्होंने और मेरे हस्बैंड खामोश हो गए, क्योंकि ही इज रॉन्ग, यू नो दैट, क्योंकि वो गलत बात कर रहे थे और वो बच्चे राइट थे। तो यहाँ का बच्चा, जब आप जो परवरिश देते हैं ना, स्पेशल अमेरिकन बच्चे, मेरे दोनों टीनेजर, मैं दुनिया की खुशकिस्मत तरीन माँ हूँ कि मैं अपने बच्चों के जो कलर देख रही हूँ, तो मैं जब भी कोई खूबसूरत माँ को देखती हूँ मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वाकई जब एक आप माँ बन जाते हैं, जैसे कि शहरी ने सिंगल मदर बोला, उसने अपनी बेटी की तारीफ की, आप प्रीत से मेरी बेटी की तारीफ पूछ लें कि मेरी बेटी इस वक्त सारी दोस्तों में समझे कि उसकी सारी खालाएं हैं, पता नहीं कितनी खालाएं और मासियां हैं, सब उसको प्यार करते हैं क्योंकि वो सबसे प्यार करती है। एंड शी इज सेम स्कॉलरशिप पे वॉसर कॉलेज में पुकिफसी में वन ऑफ द बेस्ट टॉप स्टूडेंट है। मैं उसकी वजह से अप स्टेट में रहती हूँ। अब लोग जो है, जैसे शहरी की बात को बढ़ाऊंगी, कि बात करते हैं कि ओ आपके हस्बैंड क्वींस में है, आप अप स्टेट में है, क्यों? भाई मैं अप स्टेट अपनी बेटी की वजह से हूँ, मेरा क्वींस में बेटा है, वो क्वींस को पसंद करता है वहां पे। आप फैमिलीज को अज्यूम मत करें, इससे हमारा पता चलता है, मगर हम एज ए पेरेंट्स कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को एक अच्छा ह्यूमन बनाएं, क्योंकि उन्हें नहीं आगे जाना है ना। आप देखें आपने जिंदगी का कितना कैरियर किया, आज आप अपने बच्चे के लिए जो एक्साइटमेंट है वो आपको अपनी मूवी से नहीं होगी। आपका एक एक बॉडी लैंग्वेज कह रहा है कि आप अपने बच्चे के लिए कितनी दुआ गो हैं, आप कितनी चाह रही हैं कि एक कामयाब इंसान बने। तो मैं हर माँ बाप के लिए मेरी दुआ है, और हर माँ और बाप दोनों को मैं कहती हूँ कि आप अपने बच्चों को अच्छा बनाएं, अपने बच्चों को फ्रीडम दें, अपने बच्चों को वो जगह दें कि आपको उनके फोन पे कैमरा नहीं सेट करना पड़े। बिल्कुल हिना जी, यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि हमारे बड़े सत्कार रिस्पेक्ट वाले ब्रदर कह लीजिए, मेरे प्रितपाल सिंह जी, सेम ही नेम है हमारा, बड़ा अच्छा लिखते हैं, बड़े अच्छे राइटर है ये। तो वो शाहर लुधियानवी जी का एक शेर उन्होंने यहाँ शेयर किया है कि जेकर वजी कलेजे तेरे छुरी,
नहीं ਤਾਂ Right. ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਕਿ ਹਾਲਾत शहर ਦੀ हालात नहीं बुरी, मतलब ये नहीं, मैं जो बात बोली है मैंने भी जो भी बोला है मैंने, ये नहीं कि हमारे बच्चे अच्छे हैं तो बाकी सब, मैं सबके बच्चे बुरे हैं या सबके अच्छे, मैंने एक नॉर्मल बात सब बच्चों के लिए बोली है, क्योंकि हमारा जो भारत है एक ऐसा गुलदस्ता है, एक ऐसा गार्डन है जिसमें तरह तरह के फूल खिले। हर स्टेट की अपनी लैंग्वेज है, अपनी महानता है, अपना कल्चर Right. है, अपनी उनकी जो है पहरावा है, मिठास है, भोजन है। तो हम लोग पूरे वर्ल्ड में जितने कंट्री लगा लो या हमारा भारत ही लगा लो, तरह तरह के फूल इस दुनिया में खिले हुए हैं। तो ऐसा काम करें कि जो इस खूबसूरती को, भगवान की जो सृष्टि उसने बनाई है, इसकी सुंदरता को बढ़ाए। Right. और हम कुछ Absolutely करने right. के लिए यहाँ पे इस जमीन पे भगवान ने हमें सिर्फ खाने, सोने और मरने के लिए या नंगेजता के लिए नहीं भेजा है। उसने भेजा है तो कुछ करने के लिए, मुकाम हासिल करने के लिए भेजा है। और ये सब जो हस्तियां, मैं सब दर्शकों से बात कर रही हूँ अभी कि ये सब देख रहे हैं, मैंने पहले भी बताया, ऐसा मुकाम बनाए कि आप इनको दुआएं दे रहे हैं, ऐसे ही सबको दुआएं मिले। उन बच्चियों से भी कह रही हूँ, और जो मेरे भाई बंधु बच्चे देख रहे हैं या देखेंगे उनको भी बोल रही हूँ कि आप उनको कमेंट कर करके बढ़ावा नहीं दें। बिल्कुल condemn. You कोई should भी have to चीज, condemn. कोई भी अगर बच्चा गलत कर रहा है ना, तो उसको आप बहन की नजर से देखें ना, किसी देख पराई मामा तियां पैना जाने। कोई भी बच्ची को देखते हो तो आप उसको कमेंट करके हौसला, मैं देखती हूँ कि ऐसे आप देखेंगे शहरी जी, रीमा जी, सब आप देखना, कभी टिकटॉक आपने खोला तो देखना, लाइव पे जो वो कर रही होती है उनके पीछे पब्लिक पता है कितनी होती बैठी, हजारों की तादाद में, सिर्फ ये देखने के लिए कि कब वो एक्सपोज कर रही है। तो आप लोग तो उनको बढ़ावा दे रहे हैं, तो प्लीज आप लोग, अगर एक बच्चा गलत कर रहा है तो आप उनको समझाएं। औरतें ही नहीं, लड़के भी बहुत कुछ कर रहे हैं। तो एनीवे, हम ज्यादा दूर नहीं जाते इस बात से। प्रोग्राम हमने आधे घंटा लेके चले थे, लेकिन हमारा प्रोग्राम लंबा चला गया, और इतना खूबसूरत प्रोग्राम है कि मेरा खत्म करने को दिल नहीं कर रहा, लेकिन मुझे आप सबके टाइम की चिंता है। आई एम सॉरी, मैंने टाइम ज्यादा लिया। और मैंने जैसे पहले कहा था कि आप लोग जो कर रहे हैं ना, अपने घर के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, कम्युनिटी के लिए, और जो एग्जाम्पल आप वोमेन ने एक कायम की है न्यू जनरेशन के लिए, उसकी मैं वर्ड में तारीफ नहीं कर सकती हूँ, और ना ही उसके लाइफ में कुछ आपको दे सकती हूँ। जस्ट दुआ दे सकती हूँ और धन्यवाद। छोटा सा वर्ड है, एक बहुत छोटा सा वर्ड है, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत बड़ी है। तो वो अपने दिल से करती हूँ, दिल से सल्यूट करती हूँ। हर घर में आपकी तरह की बेटी हो, आपकी तरह की बहू हो, माँ हो, सब जगह पे आप जैसी ये अगर औरतें होती हैं तो उस धरती का, उस जमीन का, उस शहर का, उस कंट्री का नाम पूरे वर्ल्ड में जो है वो फेमस होता है। तो इसके लिए मैंने छोटे छोटे ये आप सबके लिए जो सर्टिफिकेट्स है बनाए हैं। तो Oh, ये very beautiful. So This is, sweet. That's so So sweet. sweet for of Upasana you. ji as a chief So guest, sweet of you. I don't know आप देख पा रहे हैं कि नहीं। होते हो इसका नहीं आ रहे हैं सामने। हाँ, सामने नहीं आ रहे हैं। आई थिंक वो पीछे हाँ, से नहीं भी आ थोड़ा रहे हैं, ग्रीन but- स्क्रीन का हो जाता है, इस वजह से वो सामने नहीं आ रहे हैं। ये उपासना जी का ऐसे चीफ गेस्ट है। तो उपासना जी, या तो मुझे आपको ऑनलाइन भेजना पड़ेगा, और रीमा जी आपको भी ये मैं आपके पास आके ले लूंगी। हाँ, या जब आप आएंगे तब देंगे, या मैं ऐसा करूंगी रीमा जी, आप न्यूयॉर्क में आएंगे आपको तब दे देंगे, और नहीं तो फिर आप लोग अपना, मैं ऑनलाइन भेज दूंगी, तो आप अगर लैमिनेशन करवा लें तो आई विल पे फॉर दैट। बिकॉज मुझे खुद इंडिया से ऑनलाइन आते हैं बहुत सारे। कोविड में भी मुझे बहुत सारे मेरठ की तरफ से, यूपी साइड से, पंजाब से, हरियाणा से, सब जगह से मुझे ऑनलाइन ही आए हैं सबके। तो ये मेरे पास सारे ਨੂੰ स्कैन करके सानू ईमेल ना भेजो, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ नहीं नहीं, ये जो आप लोग लोकल है ना, पिंकी जग्गी जी, आपका भी है पिंकी जी। स्क्रीन पे नहीं आ रहा, रहने दो वो ग्रीन हाँ, स्क्रीन। मैं बस सर बता रही हूँ कि आपका अगर स्क्रीन पे नहीं आ रहा है तो ये मैं वैसे डाल दूंगी, मेरे पास वो है, क्या नाम है उसका, फोटो खींच के। तो ये शहरी जी फेसबुक पे आप आपके कर लिए, देना ना, वो हाँ post हिना कर जी, देना, तो हाँ, तो फिर हम लोग लंच में मिलेंगे तो आप लोगों को मैं ये बाय हैंड दे दूंगी, यस प्लीज डू ठीक है। दैट। तो
बिल्कुल प्रीत, मैं न्यूयॉर्क आऊंगी तो शहरी से मुलाकात करेंगे। वी हैव टू गो एंड मीट हर। एक मिनट जरा, पिंकी जी ना कुछ कहना चाह रही हैं। हाँ जी पिंकी जी। प्रीत जी, मैं सिर्फ यही कहना चाह रही हूँ, आज मेरी बदकिस्मती है कि मैं आप सबको देख रही हूँ, पर आप मुझे नहीं देख सकते हैं, पर मैं सबको देख रही हूँ। थैंक यू जो आपने आवाज सबको दी है। इससे उपासना जी, एक ये चीज हमें, जो भी हम लोग वुमेन्स काम कर रही हैं, वो लोगों के लिए एक बहुत अच्छा एक होगा कि प्रीत जी ने हम लोगों को ऑनर किया है। मैं उपासना जी, आपकी जो नई मूवी आ रही है उसके लिए बहुत शुभकामनाएं मैं आपको देती हूँ, और आपके बेटे को, यानी हम सबका जो बेटा है, उसके लिए इतनी शुभकामनाएं कि वो दिन रात तरक्की करे और पंजाबी मूवीज में भी आए, बॉलीवुड में भी आए। आप जिस तरह आप अपनी सारी छाई हुई है सब जगह, उसी तरह आपका बेटा भी छाया जाए, यही दुआएं हमारी हैं। तो मैं गर्व होता है कि जो औरत जिस भी मुकाम पे बैठी है, काम कर रही है, वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है। और हमारा तो LILC का मोटिव भी यही है कि हमने उन वुमेन्स को घर से बाहर निकालना है जिनके अंदर टैलेंट है और वो घर में बैठी हुई है अपना टैलेंट दबाए हुए। हम उनको बाहर ला रहे हैं कि शो योर, अपने अंदर जो आपका टैलेंट है, चाहे वो संगीत है, चाहे वो कुकिंग है, चाहे वो किसी तरह का भी टैलेंट है, वो बाहर निकालना है। और बच्चों का तो हम पूरा सपोर्ट करते हैं, टैलेंट शो बच्चों के करते हैं, सीनियर्स का हम लोग काम करते हैं, हर वुमेन्स को ला रहे हैं। उपासना जी, मेरा एक ही क्वेश्चन है, एज ए वुमेन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पर अगर हम कोई तरक्की करती है औरत, तो उसको ऊपर जाने नहीं देते, नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। क्या उधर भी ऐसा ही होता है? 100% होता है। मैंने जब पहली फिल्म अपनी बाईजी कुट्टन के रिलीज की तो मुझे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, बहुत, क्योंकि लेडी प्रोड्यूसर के लिए मतलब एक औरत को ऊपर जाते हुए देखना शायद कुछ लोगों को पसंद आता नहीं है, लेकिन हम लोग बहुत स्ट्रांग हैं। हम लोग अगर फिजिकली बहुत स्ट्रांग नहीं, हम मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं। तो मैंने छोड़ा नहीं, मैंने अपनी सेकंड फिल्म भी बनाई। सो हमें कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि भी वाहिगुरु तो साडे नाल है, कोई दुनिया बिल्कुल 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 ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ वाहिगुरु और माता रानी का हाथ होएगा, उसनु कोई भी नहीं कर सकता। आप जैसे कह रही हैं, मेरे में भी रुकावटें आई हैं, प्रीत जी जानती हैं, 2 वीक्स मैंने बड़ा बिल्कुल बिल्कुल। पिंकी जी गल पता क्या है, जब तक मुश्किल ना आन जिंदगी दे विच ते जिंदगी दा मजा नहीं आता। बिल्कुल ठीक जो है। मुश्किलों के बाद हमको सक्सेस मिलती है ना, उसका मजा ही कुछ और है। दुख लगने के बाद ही रोटी का टेस्ट पता चलता है। बिल्कुल जी, मैं आपको बता दूं, मेरे ऑफिसर काफी, रेखा जी, आरती जी, सब हाँ जी, सब बैठे हुए हैं और पूरी गैंग मंडली लेके मूवी देखने भी जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। यस यस, हम लोग का साथ चाहिए। 30 मार्च को रिलीज हो रही है। शहरी जी, आपने भी हमारे साथ जाना है, जो हमारी इना जी, रीमा जी, सभी आए, हम लोग बिल्कुल 100% चलेंगे। और उपासना जी, मैं आपको बता दूं, हम जब थिएटर पे जाते हैं, पहले मूवी देखते हैं, कप पॉपकॉर्न और कोक पीते हैं, उसके बाद हम डिनर पे जाते हैं। तो प्लीज वेलकम टू जॉइन अस, एंड हम लोग सारी LILC की ऑफिसर डेफिनेटली जाएंगे और आपको याद करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। यस भेजिएगा वहाँ की। यस यस यस, मैं आप लोगों के साथ आपको खूब याद करेंगे। हमें याद आएगा कि आपने कैसे किया है, टप्पा जप्पा व्हाटएवर द शक्ति कपूर के साथ हुआ, वो मुझे वर्ड याद आते हैं। बट आप देखेंगे तो अब्बा डब्बा जब्बा भूल जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत हुई है और मुझे पूरा यकीन है कि आपको मजा आने वाला है। जरूर आएगा, जरूर आएगा। आप हमारी बहन है, आपने हमें दिखाया है कि औरत कभी भी झुक नहीं सकती, ऊपर आगे बढ़ना है। बिल्कुल आगे बढ़। आप मेरी एक छोटी बहन की तरह हैं, पर जल्दी मुलाकात आपसे करेंगे हम अगले शो पे। फिर प्रीत हमें लेके आएगी, जब आपकी ये मूवी सुपर हिट हो जाएगी, फिर वापस आएंगे।
बिल्कुल Right, पिंकी जी, very सो good. आप भी आपका अवार्ड मेरे पास है, आपको मैं जल्दी ही पहुंचा दूंगी जहां हम लोग प्लान करेंगे No, लंच thank का। you very much. No तो problem. Thank you for giving us बाकी हम सब आपके साथ हैं। जीवन में जो आपके आता है डिफिकल्ट समय सबके पास आता है, लेकिन आप बहुत ही ब्रेव है। मुझे पता है शैरी जी, उपासना जी, मैं आप रीमा जी आपको बता रही हूँ कि जब वैसे मैं शुरू से ही राइटर हूँ, शुरू से ही मेरा ये होस्ट एंकरिंग मैंने शुरू से ही मैंने स्टार्ट किया, बड़ी छोटी एज से ही ये चीजें। लेकिन यहाँ पे न्यूयॉर्क में स्टार्टिंग में ये मेरे ख्याल से काफी पुरानी बात है, और मुझे हर जगह पे इन सबका, पिंकी जी भी बुलाते हैं, हर जगह पे मैं इनके पास पहुंचती हूँ। तो मैं ऐसे ही वहां पे यहाँ के एक बहुत बड़े अपने आप को कहने वाले वो होस्ट भी थे और अब मीडिया कर्मी भी थे, आज नहीं है, लेकिन भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि कल दी आई किरली ते छतीरा नु जफे। पूरे ग्रुप में उन्होंने कहा कल दी आई किरली ते छतीरा नु जफे। तो मैंने एक ही जवाब दिया, मैंने कहा सर आप बहुत बड़े हुए हैं, मेरे पिता के समान है, मैं बच्ची हूं अभी, आपके लिए तो मैं बच्ची हूं और मेरे तो पिता के समान है, तो आपको इस छिपकली से डरने की जरूरत नहीं है, आपकी अपनी एक इमेज है, आप स्थापित है। तो आपको मेरे से डर क्यों लगा जो आपने इतनी बड़ी बात बोल दी, इसका मतलब आप डर गए। तो मुझे उस समय पीटीसी की जो यहाँ की हेड थी जया जी, उनकी बात अभी तक याद है। मैं उनकी पीठ के पीछे भी तारीफ करती हूँ। उन्होंने मुझे एक ही बात की कि प्रीत जब बातें होने लगे ना तो समझ लो कुछ अच्छा हो रहा है। तो तुम्हारी बातें होने लगी है तो इसका मतलब तुम जा रही हो, उठ रही हो, चर्चा उसी की होती है, बातें उसी की होती है, नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है। राइट। और जब नेगेटिव होने लगे उसको पॉजिटिव की तरह इसलिए लो क्योंकि तुम्हें जो तुम्हारे काम से लोग जलने लगे हैं, तारीफ तो तुम्हारे मुंह पे भी करेंगे जी, तुम कुछ करो ना करो लोग तुम्हें बुरा नहीं कहेंगे, लेकिन नेगेटिविटी को असल में लो, तुम नेगेटिविटी को सीरियस लो। नेगेटिविटी अगर तुम्हारे खिलाफ कोई फैला रहा है मतलब तुम्हारे खिलाफ जलसी हो रही है, तुम कुछ ऐसा कर रही हो। सो पिंकी जी सारे आपके साथ हैं, आप बहुत ब्रेव हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो डोंट वरी अबाउट दिस। मैंने समय सबका ले लिया बहुत ज्यादा, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रीमा जी आई एम रियली सॉरी, बेचारे इनके पास तो अर्ली मॉर्निंग था क्योंकि उपासना जी कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क के टाइम का बहुत डिफरेंस था। जी हाँ इनका तो आई डोंट नो शी डिड हर ब्रेकफास्ट और नो नो ओह माय गॉड। मुझे तो अभी मुझे तो मेरे पेशेंट्स वेटिंग है, तो अभी 9 बजे से मेरा फर्स्ट अपॉइंटमेंट है पेशेंट्स का। मेरे क्लाइंट्स इंतजार कर रहे हैं वहां पे मेरे हेयर कट की अपॉइंटमेंट। कैन यू बिलीव उपासना जी, मैं यहाँ पे हेयर ड्रेसर हूँ। मेरी जो रोड है वो भी मेरी वेट कर रही है क्योंकि मुझे भी सारा दिन इधर उधर भाग दौड़ करनी है, आज मेरी छुट्टी है। तो जाते बहुत अच्छा उपासना जी से कि अभी हम लोग बैसाखी कर रहे हैं 30 अप्रैल को यहाँ पर लॉन्ग आइलैंड के अंदर, तो उम्मीद रखती हूँ कि 1000 लोग आएंगे। तो देखिए उस वक्त हम लोग भंगड़े अपना पंजाब का पूरा कल्चर दिखा रहे हैं, भंगड़े होगा, डोल होगी, कितना होगी। आई विश आप यहाँ होती तो आप कितना हमारे साथ भंगड़े डोल के ऊपर नाचती। शैरी जी तो होंगी पिंकी जी, आपकी उपासना जी की कमी पूरी कर देते, आप डीजे पे नानक का जो सॉन्ग है ना वो लगवा देंगे, वो लगवा देना और सब भंगड़े गाने आ जाएंगे तब तक। सारे वो वीडियो उपासना जी को भेजनी है हमने से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पिंकी जी अगर प्रीत आएगी तो आई विल डू माय बेस्ट टू ज्वाइन बिकॉज प्रीत ऑलवेज सपोर्ट पाकिस्तानी कल्चर, पाकिस्तानी फैमिलीज, पाकिस्तानी फ्रेंड्स एंड आई ऑलवेज सपोर्ट। हमारा दिल उधर ही रहता है। हमारे बहुत ही दोस्त हैं पाकिस्तान से, वुमेन्स भी हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, काफी पाकिस्तानी वुमेन्स हैं। हम लोग सब एक दूसरे की हेल्प करती हैं। सरहदी आलम पर नस्लें आमद बट गई, कोई हिंदू हो गया तो कोई मुसलमान हो गया, तोड़ के इन जंजीरों को जो उसके दर तक पहुंचाओ वो इंसान हो गया। कि वो जो इंसान हो गया। जो ये जो अरे सीमाएं हैं, ये बॉर्डर हैं, ये इंसान के दिल को नहीं बांट सकते, ये सिर्फ धरती को बांट सकते हैं। अगर इसी तरह से दो देश नहीं, पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं, पूरे वर्ल्ड को भी देखे तो एक ही भगवान की सृष्टि है, सब एक ही है, सब एक जैसे इंसान है।
एक जैसा उनके अंदर ब्लड्स है, बोन्स है, एक सूर्य है, एक चंद्रमा है। इससे बड़ी मिसाल क्या होगी? ये तो पागल पॉलिटिकल लोग हैं जो रोटियां सेकने के लिए वो लोगों को धर्म, राष्ट्र, कल्चर इसमें फेंक फेंक के अपनी रोटियां खा रहे हैं। खुद तो जंग में कभी नहीं जाते। मैं कहती हूँ कोई प्रधानमंत्री का या कोई प्रेसिडेंट का या कोई मुख्यमंत्री किसी का बेटा देखा है जंग में शहीद होते हुए आप लोगों ने? 100%। इससे अगर हम नहीं 100% समझे तो हम बेवकूफ हैं। बिल्कुल हम बिल्कुल। बेवकूफ हैं। सो वी आर वन, वी आर ह्यूमन, वी सब लोग सेम है। और सभी वुमेन्स को वुमेन डेज की, इंटरनेशनल वुमेन डे की, महिला दिवस की, नारी दिवस की बहुत बहुत बधाइयां। आप लोग चाहे घर में रह के रहती हैं या बाहर प्रोफेशन में है, बहुत बड़ा काम कर रही हैं। और सबसे बड़ा रोल जो है, एक जॉब है, वो है बीवी की, हाउस वाइफ की, जिसको कभी कोई छुट्टी नहीं होती। और उसको तो मेरा दिल से सलाम। राइट। हाउस वाइफ को मेरा दिल से सलाम। मेरी आई विश की नेक्स्ट जन्म में मैं कुछ भी ना हो, मैं सिर्फ घर पे रहूं, खाना बनाऊं, पकाऊं, घर की साफ सफाई करूं, बच्चों को देखूं और शाम को तैयार होके दरवाजे पे खड़ी होके अपने हस्बैंड का इंतजार करूं। वाह वाह। आई प्रे टू गॉड कि नेक्स्ट बर्थ में मुझे अनपढ़ ही रख लेना बिल्कुल, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे को वो सुख मिले। औरत की जो एक घरेलू औरत है, सबसे बड़ी जो जॉब है उसकी है, जिसको कोई छुट्टी नहीं है, जिसकी कोई सैलरी नहीं है। राइट राइट। उसकी पीड़ा आज तो प्रीत बहुत ज्यादा जो है ना कहते हैं कि मतलब फुल पैकेट बना हुआ है, फुल पैकेट धमाका हो रहा है आज प्रीत का। अरे बात हमारे बारे में हो रही है। बिल्कुल। उपासना जी एक बार फिर असली दूजा बारे बोल रहे हैं। आज हमारे बारे में बात है। हम लोग दूसरों की प्रेस करते रहते हैं, वो आदमी ने ये किया, वो किया। आज हमारी बात हो रही है तो हम बताएंगे आपने ना। जो भी विश मांगी अगले जन्म की आपको पूरी होगी। दुआ पूरी करें, होएगी। दुआ करें, दुआ करें, क्योंकि इस जन्म में ना सही तो अगले जन्म में तो मैं कर पाऊं कुछ। तो कहने का भाव ये है कि उनको भी कम ना आके मैं अपने, मेरे भाई जो देख रहे हैं, अनिल जी, प्रितपाल जी, या सुखदेव जी, जो भी देख रहे हैं, सबको बोलती हूँ कि जो आपकी वाइफ है वो बाहर है, अलग बात है कि वो जॉब भी कर रही है, लेकिन अगर वो घर पे ही है, सिर्फ घर का ही काम कर रही है, तो वो भी बहुत बहुत बड़ी बहुत ग्रेट। इम्पोर्टेंट। उसका तो कोई एग्जाम्पल ही नहीं दे सकते, कोई अवार्ड उनके लिए नहीं बना है। उनके लिए सिर्फ आप दो बोल ही बोल दो ना, शाम को थके हारा हस्बैंड, औरत सारा दिन चकनाचूर हो जाएगी, सुबह 4 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक। एक बार घर में हस्बैंड बोल दे कि तुमने आज सारा दिन बहुत काम किया, अब बैठ जाओ 2 मिनट, इतने से औरत, मैं कहती मेल्ट होती है ऐसे जैसे घी। औरत इसी में वो बह जाती, इसी भावना में। अगर कुछ घर में उसको थोड़ा सा प्यार का 2 बोल दिए जाएं तो उसके लिए वही अवार्ड बन जाता है। वो उसी में थकावट भूल जाती है। सो अपनी माँ, बहन, बीवी, बेटी का जो है सम्मान करे, उनको उनकी जो बनती इज्जत है वो दे, प्यार दें, रिस्पेक्ट दें, और बच्चियां हैं उनको संस्कार दें। मेरी आप सब भाइयों से यही जो है एक रिक्वेस्ट है, और ये भी एक रिक्वेस्ट है कि अपनी इन बच्चियों को गलत कमेंट दे के इनको बढ़ावा नहीं दें, अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करें। आपके बिना भी हम औरतें जो है, एक पुरुष के बिना भी अधूरी हैं। भाई भी चाहिए, बाप भी चाहिए, पति भी चाहिए, बेटा भी चाहिए। हम भी आपके बिना भी कुछ नहीं है। मैं आपको भी हम लोग उतना ही सम्मान करते हैं, उतना ही नमन आपको भी जितना इन औरतों को है। रिक्वेस्ट है कि मामा पहना तियां समझ के सबकी इज्जत करो। ये नहीं कि आपकी बेटी अच्छी है और दूसरे की बेटी बिगड़ रही है उसको इग्नोर कर दो। हिना जी ने भी कहा था। सो इस वक्त के लिए रीमा जी, आई एम रियली रियली सॉरी, बट मेरे लिए बहुत ही बड़ा थैंक यू कि आप आए। You're very welcome. Thank you for the opportunity and the stage. It was wonderful sharing the space with all these talented women and the viewers that are watching. So thank you very much. I'm very honored. Thank you. So thank you, Hina ji, Shari ji, Thank you so much. and Thank you so Upasana much. ji। So much. उपासना जी के बारे में तो मैं बोलती हूँ, बड़े हक से बोलती, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं जब बोलूंगी आ जाएंगे। Bye, Upasana ji. Bye bye. अच्छा, Upasana ji, wishing you best. Wishing you best. आपका बहुत अच्छी वो इस स्क्रीन पे नहीं आ सकेगी क्योंकि वो आपने फोन पे भेजी है, तो प्रोग्राम जो है वो कैमरे से दूसरी तरीके से चल रहा है ना। Alright, no problem. हाँ, तो कोई बात नहीं। तो इस समय सब दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। प्रोग्राम शेयर करें
और इसका प्रीमियर जो चलेगा वही 9:30 बजे डेली जो चलता है, वो कल सुबह आपका 9 परसों, आज फ्राइडे सैटरडे संडे को इसका प्रीमियर होगा। सो प्लीज आप लोग जरूर वॉच करें और शेयर भी करें। इस समय सारे नु सत श्री अकाल, सलाम, आदाब। Thank you. बहुत बहुत मेहरबानी सर। बहुत Thank अच्छा you. लगा प्रीत, विशिंग यू बेस्ट, Yes. ऑलवेज डू कीप ਲੇਟੈਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ।